There is a reason that why are you scoring just about 100 or 110 in the essay and not scoring 140 plus. There is a reason that you're not able to score 120, 130, 140, and you're scoring either average or even those marks which you think, okay, fine, I'm happy that last time I scored 90, this time I'm getting 110. Now, what I want to say you is that you have the ability, you have the potential, and you should also be having the art and the skill set to score 140 plus marks in the essay. Now, that's exactly your checklist, which I'm going to discuss in the next 10 to 15 minutes. Please stay tuned till the end of the video. Now, number one, the uncomfortable truth, if we talk about that. Now, understand one thing, you're reading far more than the average aspirant does. बहुत कुछ पढ़ रहे हो, बहुत कुछ पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपका स्कोर एवरेज ही आ रहा है. जो एग्जामिनर है ना, वो आपको रिवॉर्ड नहीं करने वाला कि आपको कितना आता है. बात को समझो, एग्जामिनर आपको रिवॉर्ड करेगा कि आपने सोचा कैसे है, आपकी सोच क्या है, आप किस तरह से सोच के आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हो, आपकी सोच को रिवॉर्ड किया जा रहा है, नॉट दैट कि आपको आता कितना है. आपकी इंफॉर्मेशन को या इंफॉर्मेशन डंप को रिवॉर्ड नहीं किया जाएगा. प्लीज इस बात को समझो. 110 और 145 दोनों के बीच में 35 नंबर का डिफरेंट है. और ये 35 नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है जब आपको पता आप मेंस जैसे एग्जाम में कम्पीट कर रहे हो. राइट, कट ऑफ तो है नहीं कि भैया मेरे अगर 80 की कट ऑफ थी, मेरे 81 आ गए, 82 आ गए, बस कट ऑफ क्लियर कर लिया. यहाँ पे रैंक डिसाइड हो रही है. मेंस आपकी रैंक डिसाइड करता है, प्री आपकी रैंक डिसाइड नहीं करता है. ऑलराइट, नाउ ये are not separated only by facts, they are separated by the volume of the arguments, by the substance and the depth of the argument. इस बात को समझो. Information without direction is only noise. Information without direction is only noise. और अगर आपको 110 मिल रहे हैं, which means कि आपका noise थोड़ा बेहतर है. थोड़ा बेहतर है than let's say 90 or 80 or 85 marks, but उतना अच्छा नहीं है कि आपको 145 मिल सके. So your information is there, which is very good. Which is very good. UPSC के examiner will reward you for your information also, but the ability to weave that information is what we call as information with direction, which will help you to score 140, 140 plus marks. Now, you wrote 1100 words, you covered multiple dimensions, you used current affairs, some quotations as well, and still you're getting around 110. If you're happy with it, fair enough, but you can score 145. The fight is for the fight is for those 30, 40 marks. Your essay reads like a well-organized GS answer. Not like a GS answer, but a well-organized GS answer. But this is not giving a very organic piece of thinking inside. Every paragraph is correct, but none of them is building on the previous one. जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर हैज फिनिश्ड योर एसे एंड कुड नॉट टेल दैट व्हाट योर पॉइंट एग्जैक्टली वाज, कि आपका पीओवी एग्जैक्टली क्या था, एग्जामिनर नहीं बता पा रहा है. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, द वन थिंग व्हिच इज सेपरेटिंग the shaft from the wheat, the 110 from 145, is that a thesis. One clear arguable claim which the entire essay defends, that is your thesis. Not a topic sentence, not a summary of facts, not an information dump. It is a position which could be disagreed with. 110 अगर आपका स्कोर आया है इसमें, वो डिस्क्राइब करता है टॉपिक को, और 145 अगर आपका स्कोर आया, दैट इज डिस्क्राइबिंग योर एबिलिटी टू आर्ग्यू toward a certain point of view, toward a certain substantial argument, which is compelling the examiner to give you marks. The thesis is the difference between what? Between writing about something and writing for something. You have to write for something, not writing about that. You have to write for something. There's a big difference, writing about and writing for. Now, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वो एसए के पेपर को एक एक्सटेंडेड जीएस के आंसर की तरह ट्रीट करते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि जीएस में आपको 3 घंटे मिलते हैं और 20 क्वेश्चन है. यहां पे आपको 3 घंटे में 2 एसए लिखने हैं. तो यहां पे तो एक बहुत बड़ा एक पैरामाउंट आपके लिए एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपना पीओवी जो पॉइंट ऑफ व्यू है एक बहुत अच्छे तरीके से नरेट करना है, वीव करना है. ऑलराइट, और आप जीएस में जितने पॉइंट्स लिखेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे, बट यहां पे ऐसा नहीं है कि यहां पे इट्स नॉट एन एग्जाम. ऐसे इज नॉट अबाउट राइटिंग मोर पॉइंट्स, इट्स अबाउट क्वालिटी. इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ पॉइंट्स कि सर मैंने 15 पॉइंट्स लिखे थे, मैंने 15 एग्जांपल्स लिखे थे, मेरे को फिर भी मार्क्स नहीं मिले. कुछ गलत कर रहे हो आप जो नहीं मिल रहे. कंटेंट आपका अच्छा होगा, इंफॉर्मेशन आपकी लाजवाब होगी, लेकिन कुछ गलत कर रहे हो आप कि आपको नहीं मार्क्स मिल रहे हैं. हर एक पैराग्राफ इंट्रोड्यूस करता है एक नया डायमेंशन, बट नन ऑफ देम इज कनेक्टिंग टू अ सेंट्रल स्पाइन. The result, that essay that is wide but shallow, और एग्जामिनर एफर्ट तो आपका देख रहा है, लेकिन एग्जामिनर आपकी थिंकिंग को नहीं एक्नॉलेज कर पा रहा है. आपके एफर्ट को एक्नॉलेज करके आपको मार्क्स दे दिए, बट आपकी थिंकिंग को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहा है. And the depth on 3 connected ideas is always outscoring the breadth across 10 disconnected ones. All right, now रीड योर लास्ट essay and ask कि क्या हर एक पैराग्राफ आपके आर्ग्यूमेंट को एडवांस कर रहा है या सिर्फ इंफॉर्मेशन ही ऐड कर रहा है. अगर आपके 110 आए हैं
तो विच मीन्स कि आप फैक्ट दे रहे हो, आप एग्जाम्पल दे रहे हो, एंड देन यू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपके 145 आए हैं, विच मीन्स दैट आप एक क्लेम को स्टेट कर रहे हो, देन आप एक एविडेंस दे रहे हो। तो यहां पे 3 स्टेप फॉर्मूला क्या है? क्लेम, then evidence, and then analyzing the implication. So claim, evidence, and implication, which is again reinforcing and connecting back to the thesis statement of the particular topic, of the particular essay topic. Agar aap, if you can remove a paragraph without weakening the essay, that should not be there. It should not be there. Now, for example, आपके इंट्रोडक्शन में ए लाइन है कि since time immemorial humanity has grappled with। यार ये ना एग्जामिनर ये लाइन ना 5,000 10,000 बार पढ़ पढ़ के ना बोर हो चुका है। ऑलराइट, वीक इंट्रोडक्शन, वहीं पे आपका काम खराब होगा। दैट विल सिग्नल कि आपका कोई ओरिजिनल थिंकिंग नहीं आ रहा, दैट आप किसी ओरिजिनल थिंकिंग के परस्पेक्टिव से अपने कंटेंट को पेश नहीं कर पा रहे, और एग्जामिनेशन की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो पहली लाइन पे ही ड्रॉप हो जाती है, वो वहीं पे टर्न ऑफ हो जाता है। यस, द फर्स्ट इंप्रेशन बिकम्स द लास्ट इंप्रेशन। इंट्रोडक्शन में 3 चीजें होनी चाहिए। क्या चीज है? एक हुक होना चाहिए, then you have to name the core tension behind the topic, and then state your thesis as well. Now you might use an anecdote, you might use an example to, make your stand validated. That is your call. But ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। Hook, your introduction has to be very different, has to look very different, has to have that hook. कोई रील देखते हो इंस्टाग्राम पे, कोई 8 सेकंड की होती है, कोई 2 मिनट की होती है। कई बार 2 मिनट की रील देखने का मन करता है बार बार, और 8 सेकंड की रील को ऐसे ही आप ऊपर स्क्रॉल कर देते हो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई कंटेंट क्रिएटर है, किसी हुक के साथ कोई वीडियो बना रहा है, वो हुक बहुत जरूरी है टू ग्रैब योर अटेंशन। सो सिमिलरली जो एग्जामिनर है उसको क्या इंसेंटिव दे रहे हो कि उसकी अटेंशन आपके कंटेंट में ग्रैब रहे। नाउ यू हैव 3 लाइंस टू मेक द एग्जामिनर वांट, you have 3 lines to make the examiner wait to reach to the line number 4, and most aspirants most of the aspirants will use those पहली 3 lines as to warm up। यहीं पे गलती करते हो कि आप जो अपना रफ वर्क है, I always suggest कि आपको 5 to 7 minutes का रफ वर्क करना है, ताकि आपको ये वार्म अप एक्सरसाइज वहां पे मेन शीट पे ना करनी पड़े। So please don't end up having a warm up 3 lines or 4 lines and then coming to the point। एग्जामिनर का इंटरेस्ट पहली लाइन पे ही ड्रॉप कर जाएगा। बहुत सारे पेपर उसने इवैल्यूएट करे हैं, बहुत सारी इंट्रोडक्शंस उसने इवैल्यूएट करी हैं एग्जामिनर ने, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, 30-35 इयर्स का उनका एक्सपीरियंस होगा जो आपके एग्जाम के आपके जो ऐसे के टॉपिक्स को इवैल्यूएट करेंगे, राइट। सो देयरफॉर यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंटिंग योर आर्गुमेंट। आप सिर्फ पहलगाम, यूक्रेन, एआई, चाइना, अमेरिका ये सब नेम करके आओगे, डोंट थिंक दैट एनीबडी वुड बी इंप्रेस्ड। ऑलराइट, आपको करंट अफेयर्स को यूज करना है, लेकिन करंट अफेयर्स को बिना एनालिसिस के यूज करोगे तो वो सिर्फ आप डेकोरेट कर रहे हो अपने आर्गुमेंट को, उसमें सब्सटेंस नहीं है और आपका स्ट्रक्चर भी बहुत कमजोर दिखाई देगा। Every current affairs reference must answer 3 questions: what happened, why does it matter, and what does it prove about your thesis statement। ये चीजें बहुत जरूरी है समझनी। One example unpacked across 3 sentences is beating 5 examples। आपने एक एग्जाम्पल अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया, वेरी गुड, रादर देन कि आप 5 से 6 एग्जाम्पल्स पेश कर रहे हैं और फिर भी उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। देयर इज नो पॉइंट इन दैट। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, द काउंटर आर्ग्यूमेंट प्रॉब्लम। 110 अगर आपका ऐसे का स्कोर है तो आप केवल एक साइड का ही स्टैंड ले रहे हैं, आप दूसरा पर्सपेक्टिव, दूसरा पहलू नहीं बता रहे हैं। एग्जामिनर नोज दैट काउंटर आर्ग्यूमेंट इस टॉपिक एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको क्यों नहीं पता और आपने पेश क्यों नहीं किया। ऑलराइट, अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो ये आपका ऐसे प्रोपेगेंडा ही दिखाई देगा। ऑलराइट, अड्रेसिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्जेक्शन टू योर थीसिस एंड देन रीबटिंग इट, दैट इज समथिंग ब्रिलियंट। कि आपने अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फॉरवर्ड दिया, लेकिन आपने अपने पॉइंट पे काउंटर आर्ग्यूमेंट भी दिया, ताकि आप उस थीसिस का काउंटर थीसिस भी बता पा रहे हैं। विच इज नॉट दैट कि आपने स्टैंड अपना एकदम से ऐसे के बीच में बदल लिया, लेकिन थीसिस का काउंटर थीसिस बताना शोकेसेस योर एबिलिटी दैट यू आर अ वेरी वेल बैलेंस्ड इंडिविजुअल, दैट आप उस पर्सपेक्टिव के दोनों पहलू को एनालाइज कर पा रहे हैं। एनालाइज, सिर्फ इंफॉर्मेशन ही एनालाइज कर पा रहे हैं। एक ऐसे जो कि एक्नॉलेज करता है इस टेंशन को और कंप्लेक्सिटी को, दैट देयरफॉर दैट यू आर डिफेंडिंग योर पोजीशन एंड देयरफॉर यू आर एक्चुअली मेकिंग योर स्टैंड वेरी वैलिड, दैट एग्जामिनर शुड गिव यू 140 प्लस मार्क्स। Now, therefore, a multi-pronged holistic approach is definitely needed. This is the most expensive sentence in the UPSC essay writing. ये एक बहुत cliche statement है। Conclusion is the last thing that the examiner reads before writing your score. It has outside, because पता है क्या, even मैं भी किस बात को relate करूं, when I'm reading the essay, मैं conclusion तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरे को पता होता है, शुरू में देख के पता लग जाता है कि ये essay किस दिशा में जा रहा है।
तो आपने ये क्लीशे स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में लिखी है ना तो फायदा नहीं होने वाला। इस तरह की क्लीशे स्टेटमेंट्स मत लिखो। और 110 अगर आपका स्कोर आया है तो कंक्लूजन उसमें समराइज क्या करेगी? आपने अगर 110 स्कोर करा है, 100 स्कोर करा है, 90 स्कोर करा है, तो आपका कंक्लूजन ना विल बी द समरी ऑफ व्हाटएवर यू रिटन इन द एसे, वुड नॉट बी समथिंग न्यू। और 145 अगर आपका स्कोर आया है, वहां पे आपने कंक्लूजन को इस तरीके से सिंथेसाइज किया है जहां पे एक फॉरवर्ड लुकिंग विजन है, एक कंस्ट्रक्टिव आर्गुमेंट है, जहां पे हर एक लाइन रिजेंबल करती है एग्जामिनर के थॉट प्रोसेस के साथ। ऑलराइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, एंड में यही बताना चाहता हूं कि डोंट ट्राई टू बी वेरी सेफ, ट्राई टू टेक सम रिस्क। अगर आप रिस्क लोगे तो ही आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। डोंट ट्राई टू प्ले सेफ। यूपीएससी का एसए का एक इकलौता पेपर है जहां पे हैविंग अ पॉइंट ऑफ व्यू इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, इट इज अ मैंडेट, it is not permitted, it is absolutely essential, you have to have that POV. And after reading so many essays, thousands and thousands of essays, examiner notice karega that one writer who actually had something to say, because that writer had the ability to think. All right, so please think about it before writing a single word. Write your thesis on the rough sheet and test if it can be disagreed with. And after writing each paragraph, ask yourself कि क्या ये पैराग्राफ मेरे थीसिस को या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूफ कर रहा है कि सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा है उस टॉपिक को। एंड बिफोर सबमिटिंग, रीड योर इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट। दे शुड टेल द कंप्लीट स्टोरी ऑफ योर थीसिस आर्ग्यूमेंट। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी एसेंशियल। दोस्तों, हमारा एसए का क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है। 15 जून से हमारी क्लासेस एसए के क्रैश कोर्स में होंगी। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, यू रियली वांट दैट 2026 का आपका जो अटेम्प्ट है मेंस का, उसमें आप अपने एसए के स्कोर में लैग बिहाइंड ना करें, प्लीज गेट इन टच विद मी। आई वुड लव टू असिस्ट यू, आई वुड लव टू हेल्प यू। दिस इज द टोल फ्री नंबर। इस कोर्स का प्राइस 4499 है। इसमें 5 FLTs हैं, 1-on-1 मेंटरशिप है, मेरे द्वारा ही मेंटरशिप होगी, मेरे द्वारा ही इवैल्यूएशन होगी, और इसमें 10 ऐसे के थीम्स मैंने क्लासिफाई करे हैं बेस्ड अपॉन द PYQs ऑफ द लास्ट 5 years। उसके फ्रेमवर्क्स आपके साथ मैं इन 4 से 5 लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। मुझे आपका इंतजार है। थैंक यू।